الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيعنا عند الله. قابل احترام اساتذہ کرام، سادات کرام، مفتیان اعظام، علماء اعظام، فاضل کرام اور حضرات، اور مجموعی طور پر سنی علماء کونسل جموں کشمیر کے جو چاہنے والے، محبت رکھنے والے منسلک افراد ہیں، سب کی خدمت میں محبت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بات سے اپنے بیان کا آغاز کروں گا، شاگرد ہمیشہ اپنے استاد کے سبق کو دہراتا ہے. میرے استاد محترم جو سنیوں کے دل کی دھڑکن گزرے ہیں، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ و رضوان، ان کا ایک معمول ہوتا تھا کہ جب وہ کہیں بریلی شریف میں عموماً ہم ان کے بیان سنا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں، تو وہ جہاں کہیں بیان کرتے تھے تو ان میں ایک جملہ وہ ضرور دعائیہ فرمایا کرتے تھے. تو میں سارے حضرات کو اس پر متوجہ کروں گا. وہ ایک دعا فرماتے تھے، جیے تو خدمت دین متین کرتے رہے. سبحان اللہ. ایک دعائیہ جملہ حضور تاج الشریعہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد صلاۃ والسلام کے بعد پھر وہ ایک چیز فرمایا کرتے تھے، دعائیہ، جیے تو خدمت دین متین کرتے رہے، مرے الہی تو محبوب کی رضا کی. یہ وہ دعا ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک راز ہے. ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے، اور دین کی خدمت کس لبادے میں ہے، کس لباس میں ہے، کس صورت میں ہے؟ مرے الہی تو محبوب کی رضا کے لیے. ہمارا دنیا میں کوئی کام ہو، تبلیغ ہو، درس و تدریس ہو، نیک اعمال ہوں، یا کہ عقیدے کی اصلاح ہو، یا مسلم عوام کی اصلاح ہو، تو وہ محبت رسول کے دائرے. سمجھے؟ الحمدللہ آج جو یہ محفل سنی علماء کونسل جموں کشمیر کے بینر تلے یوم تاسیس کے موقع پر منعقد کی ہے، ساتھیوں سے میں نے جو باتیں سنی ہیں، عزیزوں سے سنی ہیں، دل میں یہ خوشی ہوئی کہ آپ کو کام کرنے کا ایک جذبہ اللہ نے دیا ہے. اس پر میں آپ کو مبارکباد دوں. اور ایجنڈے کے اندر ایک بات، سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. میں آپ کو فراخ دلی سے یہ کہوں گا، الحمدللہ ہم نے کچھ کھویا نہیں، ہم نے کچھ کھویا نہیں. اور میں یوں ہی رف بولی نہیں بول رہا ہوں، جہاں تک میرے کانوں تک آواز آئی ہے اس سال کے اندر، میں اس کا مشاہدہ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کچھ نہیں کھویا. سمجھے نہیں؟ ہاں، دلائل کے ساتھ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ ضرور ہے، الا اللہ سے پہلے لا الہ ضرور ہے. اب اس کو اگر ہم دہرانا چاہیں تو اس کی تشریح کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ سنی علماء کونسل کے کسی ممبر نے، چاہے وہ میڈیا انچارج ہو، ہمارا خطیب ہو، ہمارا مدرس ہو،
हमारा इलाके का जिम्मेदार सदर हो, सेक्रेटरी हो, किसी ने भी किसी सुन्नी आलिम के खिलाफ इस वक्त तक ना कुछ लिखा है ना कहा है। बोलो हमने कुछ खोया? नहीं खोया। हम पे कोई उंगली उठाएगा कि सुन्नी उलमा कौंसिल ने हमारे किसी आलिम की तौहीन की, जमात अहले सुन्नत के किसी अकाबरीन में से किसी के खिलाफ लब कुशाई की? मेरी नोटिस में कोई नहीं है। और यही अंदाज हमारा कामयाबी का है। क्या ख्याल है? यही अंदाज हमारा कामयाबी का है। आज जो हमारी ये तंजीम बनी है, इसमें तमाम कबाइल के लोग हैं और इलाके से मुंसलिक लोग हैं, और फिर जितनी हमारी सुन्नी तंजीमें हैं, जमात रज़ाए मुस्तफा है, जमात अहले सुन्नत है, सुन्नी जमीयत उलमा है, ये सारी तंजीमें जो हैं, ये सब लोग उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहिए, ताकि ये हमारी सुन्नी उलमा कौंसिल अपना एक मकाम पैदा करे कि हमारी तंजीम ऐसी है कि जो किसी के पीछे नहीं पड़ी हुई है, बल्कि उसकी अच्छाइयों को अपनाने वाली है। समझो ना? हमारे किसी आदमी ने इस वक्त तक किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। और एक बात की निशानदेही मैं जरूर करूंगा, वो ये कहूंगा, जमात अहले सुन्नत हमारी है। बोलो आप में से किसी का इख्तिलाफ है? नहीं। जमात अहले सुन्नत के पास इस वक्त जामिया रज़विया सुल्तानिया सुरंगकोट ये हमारी जमात का इदारा है। जामिया अनवारुल उलूम हमारी जमात का है, हमारी जमात का है। वो बैनर दूसरा लगाते, मगर वो बैनर भी हमारा है, वो बैनर भी हमारा है। मगर मुझे इस चीज से बड़ी कोफ्त होती है। कोफ्त ये होती है कि अगर हमारी सुन्नी उलमा कौंसिल ने सुरंगकोट कॉलेज के अंदर अगर फंक्शन किया है, नौजवानों ने किया, तालिब इल्मों ने किया, हमारे सुन्नी उलमा हुफ़ाज़ किराम ने किया, है ना, मगर उस पर दाद देनी चाहिए थी। बजाय दाद देने के जमात अहले सुन्नत का एक छोटा सा लड़का उठा और उसने सारे सुन्नी उलमा कौंसिल वालों को मुनाफिक लिख दिया, और फिर वो किसी बड़े के पल्ले के नीचे, दामन के नीचे छुपा रहा। मैं बहुत देर से देखता रहा, काफी अरसे से देखता रहा। हमारे अकाबरीन जमात अहले सुन्नत से कोई इस चीज की निशानदेही करेगा और ठुकराएगा कि यह बयान तुमने गलत दिया है, मगर उन बड़ों ने कभी उसको गलत नहीं कहा। जब गलत को आप गलत नहीं कहोगे, जब पहले ला इलाहा नहीं पढ़ोगे, तो इल्लल्लाह तो बाद में आएगा। पहले गलती को हो कि फलाना गलत है, और ये जुर्रत अपने अंदर रखो। मगर उनमें से किसी ने अकाबरीन में से, ये मुझे दुख है इसलिए कि जब मैं पूंछ में काम कर रहा था, सबसे पहले मैं मौलवी सनाउल्लाह शाह साहब, मुफ्ती गुलाम रसूल साहब, मुफ्ती यूसुफ साहब बाद में फील्ड में आए हैं, ये बाद में आए हैं। और ये तंजीम जमात अंजुमन उलमा अहले सुन्नत जो है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इसका बीड़ा हमने उठाया, और मैंने दो अकाबरीन को जोड़ा, सिर्फ दो को, अल्लामा दिल मोहम्मद साहब को, हाफिज सईद साहब को। अल्लामा दिल मोहम्मद साहब से मैंने कहा, आपके पास बड़ा कीमती पुर्जा एक है, मैंने कहा उसको साथ रखो, एक जमात वजूद में लाओ। है कौन सा? मैंने कहा हाफिज सईद साहब है। वो तो भाभी है। मैंने कहा आपको किसने कह दिया है? उसका बाप जो है वो भाभी था। मैंने कहा बाप माँ की बात नहीं है, मैं हाफिज साहब की बात कर रहा हूँ। ये मजहर इस्लाम बरेली शरीफ का फाजिल तहसील है, समझे नहीं? आप उनको साथ जोड़ो। फिर हमने दराज से हाफिज साहब को लाया और इनको रजौरी इकट्ठा किया। जब इकट्ठा किया, एक दूसरे में मुगाजिरत थी बिल्कुल हजरत, और जब इकट्ठा किया, अल्लामा दिल मोहम्मद साहब के घर में मीटिंग बुलाई गई, अंजुमन उलमा अहले सुन्नत वजूद में आई, जामिया शरीफिया के नाज़िम आला साहब वहां आए हुए थे, हमने उन्हीं से इनका नाम रखवाया, और फिर अल्लामा दिल मोहम्मद साहब को जमात का सदर मुकर्रर किया। फिर हमने क्या किया, हम उस वक्त बड़े पुर अशोक दौर से गुजर रहे थे, मरकज हमारे पास कोई नहीं था। मरकज जामे मस्जिद पूंछ यह भी दूसरों के पास थी, समझे नहीं? मंडी यह भी दूसरों के पास थी, और रजौरी यह भी दूसरों के पास। शाहदरा शरीफ मरकज के अंदर जो इमाम था वो भी देवबंदी था। तो फिर हमने एक मुठ होकर साथियों को साथ रखकर लड़ाई लड़नी शुरू की। उस लड़ाई का नतीजा निकला कि तमाम मरकज हमारे पास आए। अल्लामा दिल मोहम्मद साहब की क़यादत में वो काम किए
कि जो इस वक्त उनके मौत के बाद भी इस वक्त वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। और क्या दिलो जान से हम इकट्ठे हो गए हुए ना। हमारा पूंछ के अंदर मरकज नहीं था, तो पूंछ के अंदर पहले रजिया सुल्तानिया मुफ्ती अयूब साहब ने इसका नाम रखा और उसकी बुनियाद डाली। उस वक्त सैयद बशार साहब पढ़ रहे थे, समझे नहीं। बाद में जामिया अनवारुल उलूम बना। पहले पूंछ के अंदर मेरा मदरसा था नूरुल इस्लाम के नाम से, जिसमें मौलाना सैफुल्लाह साहब ये वगैरह, या अमीन साहब, मौलवी अब्दुल लतीफ साहब, ये हमारे पास दाखिल हुए, छोटे छोटे ये दाखिल हुए। तो उस वक्त का एक माहौल था। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपको, जिन मुश्किलात से हम गुजर कर आए हैं, जब हमने अवाम के साथ अपने आप को पेश किया, तो उस वक्त बहुत सारे, जब मजलिस में कहीं जाता था ना, तो उस वक्त बड़े बड़े लीडर देवबंदी खड़े हो जाते थे, मौलवी साहब आ गए हैं। और आज भी मैं कहूंगा आपसे, फखरिया कहूंगा, मेंबर के अंदर किसी मसलक का आदमी हो, देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो, जब हमारी वहां कोई सियासी या कोई ऐसी मीटिंग होती है, कहीं बैठते हैं, तो उस वक्त बड़ा कोई अफसर, कोई आरटीएम, कोई डीसी चला जाए, एसपी चला जाए, तो फिर अगर उलमा से राय पूछते हैं, शफीक साहब को अच्छी तरह याद है, मेरी मीटिंग में बैठते रहे, मेरे शागिर्द हैं। तो जब भी कोई बात हो, वो बाकी तंजीमें जो हमारे से बिल्कुल अलग थलग हैं, वही राबता हमारा उनके साथ नहीं, जैसे शिया हैं, जैसे वाबी हैं। मगर जब उनसे गवर्नमेंट के आला कार ऑफिसर पूछते, बोलो जी आप अपनी राय बताओ, वो कहते हैं जी जो मुफ्ती साहब की राय है वो हमारी राय, हम इनके पीछे, समझे ना। मैं ये गुजारिश करूंगा, हमारी मेंबर के अंदर मुस्तनद मुफ्तियाने के नाम बहुत कम है, मेरे पास ये कमी है। आपकी हवेली में, आपके इस इलाके के अंदर अल्लाह ने आपको बहुत सारे मुफ्तियाने के नाम दिए हैं, बड़े जीरक और अच्छे अच्छे उलमा आपको दिए हैं। आपके पास एक खजाना है, आप उसको संभाल के रखो, उसे काम लो, उनसे काम लो। मैं गुजारिश करूंगा, वो वक्त भी था जब मौलाना अमीन शाह साहब मंडी में गए, हमारे सुन्नियों ने इन पर इल्जाम लगाया कि ये वाबी है, मुझे मेंबर से आके फैसला करना पड़ा, मुझे वो वक्त भी याद है, समझे नहीं। आज अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उनके वालिद मेरे दोस्त हुआ करते थे, सैयद इसामुद्दीन शाह साहब मेरे मदरसे के मेंबर भी थे, और जब पूछ आते बगैर चाय पिलाए मुझे नहीं जाते थे, इतने थे। ये मंडी, ये इलाका सारा मेरा छाना हुआ, लोन तक हम आया जाया करते थे। अब चूंकि मसरूफियत है, मैं नहीं आ सकता, मगर मैं गुजारिश करूंगा आपसे, गुजारिश यह करूंगा, जिस तरह बाकी सुन्नी तंजीमें हमारे ऊपर कीचड़ उछालती हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जितने सुन्नी उलमा कौंसिल वाले हो, खबरदार भूल कर भी किसी तंजीम के सुन्नी आलिम, किसी हाफिज के खिलाफ कोई मत लिखो। मैं सख्ती के साथ आपको मना करूंगा, वरना हमारी तंजीम फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और मैंने ये देखा कि जब मैंने तजर्बा किया, कुरान ने हमें सबक दिया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, हिकमत की चीज का नाम है, हिकमत की चीज का नाम है कि जब मुफ्ती अयूब साहब के विसाल के बाद, हालांकि उनकी मौजूदगी में तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी हयात में जामे मस्जिद कमेटी का सदर मुझे मुकर्रर कर दिया गया, मदरसे का नाज़िम मुझे मुकर्रर कर दिया गया। उसके बावजूद भी मेरी मुफ्ती साहब की वफात के बाद मेरे खिलाफ तहरीकें चली, मगर जो आदमी बिल्कुल पेश हुए, मैंने कभी उनको अपना मुखालिफ नहीं गर्दाना, कभी नहीं गर्दाना। और आज नतीजा ये निकला, वो सारे मुड़ के फिर वापस मेरे पास आ गए। शफी साहब को पता है, और बिल्कुल जो कट्टर किस्म के मेरे दुश्मन थे बने हुए, मैंने कभी उनको अपना दुश्मन नहीं कहा, बल्कि जब भी मिले खंदा पेशानी से अस्सलाम वालेकुम। सही साहब को पता, आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो मरकजी जामे मस्जिद मेंढर, आज इस वक्त हमारी मरकजियत वहां सुन्नियों की इस वक्त बालादस्ती है, हमारे सामने कोई आदमी वहां नहीं टिकेगा इंशाअल्लाह। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी हौसला अफजाई के लिए, वो ये बात बताऊं, मैं आज भी इस मौके पर अड़ा हुआ हूं, अल्लाह मुझे कायम रखे। वो ये मौक़िफ़ है हमारा कि हमारे पूंछ के अंदर हमारे उलमा पूरी जम्मू कश्मीर में एक पावर रखते हैं, पूंछ के उलमा खास करके जम्मू कश्मीर में एक पावर रखते हैं,